where Gurugram was concerned. Let's cut across to my colleague Aishwarya Paliwal, who joins us from Ghazipur border. Aishwarya, in any case, there was a call that there will be no Chakka Jam in Uttar Pradesh and Uttarakhand. What's the situation where you are? Well, Preeti, this was definitely a very symbolic protest, and Rakesh Tikait himself has been present since morning. He made sure no untoward incident takes place at the Ghazipur border. On the other hand, the administration was fully prepared for today. As you can see, there are rows of barricades which have been put up. In fact, just between this barricade and the next, you can see how the road has been dug up. There are barbed wires which are now put on top of barricades, and then they are followed by cemented barricades. Police personnel present in large number, all of them wearing the right gear. A lot of paramilitary forces have also been brought in. The figure which we have at the Ghazipur border, we understand there are close to 1,000 police personnel. Water cannons too have been put up. So the administration was prepared, but the farmers were also saying they just wanted this to be a symbolic protest. Neither the administration nor the farmers, none of them wanted a repeat of what happened on the 26th of January, which is why you are seeing such a elaborate. Here too you can see barbed wires, barricades from one end to the other end. The idea was to make sure no farmer or no one small group from those who are sitting at the Ghazipur border, they should not make any attempt to enter the national capital. None of them happened today. A very peaceful protest here at Ghazipur. Preeti. Appreciate you joining us, Aishwarya. We're going to continue to come back to you, but the symbolic protest even at Ghazipur has now been called off, even though there was no blocking of highways in Uttar Pradesh or Uttarakhand or even the NCR region, as a matter of fact. Our reporters have been sending us reports from the ground. Let's quickly listen in on what they filed. इस वक्त हम लोग मौजूद है शहीदी पार्क पे। पुलिस के तमाम सुरक्षा के बावजूद आप देखिए यहाँ पर NFIW ये के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और ये महिलाएं हैं ज्यादातर इनमें यहाँ से, और पुलिस देखिए इनको यहाँ से पकड़ के ले जा रही है। कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठने की भी कोशिश कर रही थी। आप देखिए इसीलिए महिला पुलिस की यहाँ पर तैनाती की गई थी कि अगर महिलाएं आएंगी तो उन्हें किस तरीके से ले जाया जाएगा। आप देखिए आज यहाँ पर आखिरकार तमाम जो बैरिकेड थे उसको पार करके यहाँ पर पहुंचे, और देखिए यहाँ पर देखिए ये महिला आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बैठ रही हैं, जाने के लिए तैयार नहीं है। और इनको आप देखिए ये सेव फार्मर सेव नेशन ये इस तरीके का बैनर लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तमाम लोग। हम आगे की तरफ ले चल के आपको दिखाते हैं। तकरीबन 30 से 40 की संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर पुलिस यहाँ पे इन सब लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए यहाँ पर कृषि कानूनों की कहानी, सरकार की मनमानी, इस तरीके के बैनर पोस्टर लेकर के यहाँ पे महिलाएं पहुंची हुई हैं। पुलिस को इस चीज की जानकारी थी, यही वजह है कि पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के किसानों का चक्का जाम जारी है। हजारों की तादाद में हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है, और ये जो ठीक मेरे पीछे हाईवे आप देख रहे हैं, ये हाईवे दिल्ली, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर को लुधियाना होते हुए जोड़ता है। और पिछले 26 नवंबर को जब दिल्ली में पहली बार किसान यहां से गए थे, यहां पर काफी हंगामा हुआ था, लेकिन आज हजारों की तादाद में किसान यहां पर मौजूद हैं। कैमरे को थोड़ा सा इधर घुमाते हैं तो आप देखिए हजारों की तादाद में किसान मौजूद है। पुलिस बल अब की बार यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इससे थोड़ा सा पीछे कुछ मीटर की दूरी पर जहां हरियाणा की सीमा शुरू हो जाती है, वहां हरियाणा पुलिस ने खासे इंतजामात किए हुए हैं। बस की बस पुलिस बलों की यहां पर तैनात की हुई है, लेकिन किसान संगठनों ने अब की बार अपनी रणनीति बदली है और इस चक्का जाम को पूरी तरीके से शांतिपूर्वक रखा गया है। और ये भी कोशिश की गई है कि 26 जनवरी की तरह कोई बाहर का लोग इस आंदोलन में ना घुसे, लिहाजा किसान अब की बार खुद ही इस पूरे मामले को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, और फिलहाल यहां पर शांतिपूर्वक तरीके से चक्का जाम जारी है। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सतेंद्र चौहान, शंभू बॉर्डर। देश भर में किसानों के चक्का जाम को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी सरकार ने, पुलिस ने चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल को तैनात किया हुआ है। हम इस वक्त होशंगाबाद रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो आम दिनों के मुकाबले पुलिस बल पहले से ज़्यादा है। पुलिस
बलों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही रिजर्व फोर्स जो है वो भी रखा गया है कि यदि कोई जबरदस्ती चक्का जाम करवाने की कोशिश करता है तो उसे रोका जा सके। ये जो इलाका है ये होशंगाबाद से होता हुआ भोपाल की तरफ ये सड़क आती है और क्योंकि ये जो चौराहा पड़ता है ये नए भोपाल से पुराने भोपाल की ओर जाने वाला एक प्रमुख चौराहा है और इसीलिए यहाँ पे सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के अलावा फायर ब्रिगेड और जो दूसरे वाहन है उन्हें भी यहाँ तैनात रखा गया है कि यदि जबरदस्ती चक्का जाम कराने की कोशिश की जाती है किसान संगठनों की तरफ से या फिर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तो उसे रोका जा सके। अब फिर लगाओ जाइए और भी फिर ये कह दिया हमारे गांव वाले सब समझ जाओ क्या कहा, क्योंकि कील दिल्ली ने काट दी है तो कील काट कर जानी पड़ेगी। हमने कल मिट्टी क्या मंगानी क्या आफत खड़ी होगी, वह मिट्टी भी कब्जा कर ली, लेकिन खुशी की बात यह है कि उस मिट्टी का जो कब्जाधारी है उस पर जो पहरा है वो पहरा देश के जवान का है। जब देश के जवान का पहरा मिट्टी पर हो जाएगा तो खेती की रक्षा हो जाएगी। या तो सरकार सुन ले, नहीं तो अगला आंदोलन ये भी होगा कि जिस घर में से फौज में पुलिस में हो गए उसका परिवार यहां रहेगा और उसकी तस्वीर लेकर उसका बाप यहां पर बैठेगा। ये कान खोल कर सुन ले सरकार, या तो बिल वापसी ले एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो काम हमारे पास में भी है, आंदोलन जारी रहेगा और हम देश में यात्रा करेंगे। हम निकलेंगे देश की यात्राओं की तरफ, पूरे देश में आंदोलन होगा, नॉन पॉलिटिकल आंदोलन होगा पूरे देश में। और आह्वान ये भी होगा कि अपने बच्चे की तस्वीर जो आंदोलन में उसका परिवार का आदमी होगा वो लेकर आएगा, किस दिन लेकर आना है वो भी बता देंगे। फिर ना कहिए कि ये किस तरह का आंदोलन है। और जो पॉलिटिकल पार्टी जो उद्योगपति है ना वे भी दिखाओ कर उनके बच्चे कौन पुलिस फोर्स में है। तिरंगे को हम मानते हैं, हमारे बच्चों की शहादत तिरंगे में होती है, गांव में तिरंगे में लिपट कर आता है, तिरंगे का अपमान सहन नहीं होगा, तिरंगे का अपमान सहन नहीं होगा। ये व्यापारी की जो कहावत है ना वो सच होती जा रही है, व्यापारी चमड़ी दे देगा दमड़ी नहीं देने का। इनको देश से लगाव नहीं है, ये समझ लेना साहब, इनको देश से कोई लगाव नहीं है, इनको व्यापारियों से लगाव है, इनको किसान से लगाव नहीं है, उसके अनाज से लगाव है, इनको मिट्टी से लगाव नहीं है, इनको अन्न से लगाव है। ये कील बोएंगे हम अनाज बोएंगे, ये कील बोएंगे हम अनाज बोएंगे। सरकार समझ जाए हम बातचीत के लिए तैयार हैं, कंडीशनल बात नहीं होगी, बात प्लेटफॉर्म जब बराबर में हो जाएगा जब बातचीत होगी, दबा के प्रेशर में बातचीत नहीं होगी। अगर ट्रैक्टर यहां पे लेके कोई आ गया उसके घर पर नोटिस जा रहे हैं, ये हरकत बंद कर दो। अगर ट्रैक्टर हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर चलेगा। कौन सा कानून है कि ट्रैक्टर सड़क पर नहीं चल सकता? कहां लिखा हुआ है? ये ट्रैक्टर एनजीटी के खिलाफ आया था, एनजीटी ने बंद करा है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर देश में नहीं चलेगा। 10 साल पुराना ट्रैक्टर चला, 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चला, एनजीटी का ऑफिस नहीं मिला, कहां था? हम दिखाना चाहते हैं कि जो ट्रैक्टर हमारे खेत में चलता है वो दिल्ली के एनजीटी के ऑफिस पे भी चलेगा। अभी नहीं कहा कि किस किस के 10 साल से पहले कौन कौन सी चीज चल रही। इनका प्लान क्या है कि 10 साल से पुराना ट्रैक्टर को बंद करो, उद्योगपतियों को फायदा दो। ये 10 साल का पुराना ट्रैक्टर भी चलेगा और दिल्ली की सड़कों पर चला कर दिखा है। 20 लाख आदमी था दिल्ली की सड़कों पे। अगला टारगेट हमारा 40 लाख ट्रैक्टरों का है। हम जाएंगे देश में और जो किसान
यात्राओं में ट्रैक्टर लेकर आएगा इस साल, उसको अधिकार होगा कि अपने ट्रैक्टर को इस ट्रैक्टर क्रांति से जोड़े। अपने ट्रैक्टर पर लिखे किसान क्रांति 2021 26 जनवरी। जब वो ट्रैक्टर को लिख के और देश में कुछ चलेगा, उसका सम्मान होगा। 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट है। सरकार को अगर समझ में आ रही हो तो किसान से बात करें, एमएसपी पे कानून बनावे, 3 कानूनों को वापसी ले। जब भी घर वापसी होगी उससे पहले किसान घर नहीं जाएगा। टारगेट 2 अक्टूबर तक है हमारा, उसके बाद आगे का प्रोग्राम बढ़ाएंगे। अभी आप सब लोगों को अपने गांव से ये करना है कि शिफ्ट वाइज, जैसे आप खेती करते हो ना, ऐसे ही शिफ्ट वाइज आपको गांव दर गांव यहाँ पे जनसंख्या बढ़ाते रहना है। ज्यादा भी नहीं बढ़ानी है, कम भी नहीं रखनी। जितनी है काम चलता रहेगा। ठीक, कभी बढ़ा दी, झटका सा मार दिया, कभी किसी की पर्ची आके ठीक कर लिया काम। जो गन्ना किसान था उसने समझ लिया कि आंदोलन लंबा चलेगा, जिसकी पर्ची आवे वो गांव में चले जा, दूसरे वाला यहाँ पा जा। ये ठीक पड़ गया रूटीन। सरकार की जब समझ में आ जाए, जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, जब वो बात कर ले। हमारी कमेटी भी वही है, हमारा पंच भी वही रहेगा और हमारे पंच भी वही रहेंगे। गलत फहमी में ना पड़े, ना मंच बदलेंगे ना पंच बदलेंगे। वे कील बोएंगे, हम फसल बोएंगे। हम भी किसान हैं, हम ही जवान हैं, ये नारा इस आंदोलन का रहेगा। जो मिट्टी पे कब्जा करा है, हर किसान जो गांव से आएगा अपने खेत की एक मुट्ठी मिट्टी यहां पर ले आए और यहां से एक मुट्ठी मिट्टी जो क्रांति की मिट्टी होगी वो लेकर चला जाए, अपने खेत में बखेर देना। वो खेत की तरफ कभी व्यापारी देखेगा नहीं। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.